Okay, good evening to all of you. All in Tech Gate classes. I would like to introduce. My name is Manish and I'm mechanical engineering faculty from IIT Delhi 2013 and my latest gate rank is IR 190 gate 2020 and I'm qualified and I have 9 plus years experience in gate and engineering services, correct? And this is on strength material and this is model 6 and number 1. So once again welcome to all and let's crack the gate, and in this lecture I am going to discuss shear force and bending moment diagram, correct? Basic concepts of shear force and bending moment diagram. Let's start. First of all, here I am going to describe what is beam. Already हम लोग पढ़ चुके हैं previous lectures in case of beam, correct? लेकिन मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे बताऊँ, beam is nothing but it is any structural element, any structural element is said to be a beam when it is subjected to a transverse load. Like you can see, suppose you can, okay, now I am going to draw a figure. Suppose this is our beam like this, three-dimensional here, and suppose its one end is fixed like this, and you can see here this is the cross section of the beam. Now you can see if the load is acting along the cross sectional axis like this, देख सकते हैं यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है, suppose consider our z axis and this is our x axis and our y axis. Now in this case the load is acting along y axis. So whenever we have a load which is acting parallel to the cross section, correct, then this is called as beam. Yes or no? So any horizontal structural member is said to be a beam when it is subjected to a load transverse, when it is acting the load along the transverse axis or parallel to the cross section. Is that clear? Now next, that is types of beam. And you can see here first one, that is cantilever beam. If one end is fixed and another end of the beam is free and it is subjected to a load like this, then this is called as कैंटिलीवर बीम. तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि पॉइंट लोड की वजह से इसको हम कैंटिलीवर कह रहे हैं. कोई भी ऐसी बीम हो जिसका एक एंड फिक्स हो लाइक दिस और एक एंड फ्री हो तो उसे हम कैंटिलीवर बीम कहेंगे. एंड सिंपली व्हेन वी टॉक अबाउट, you can see here a beam is said to be simply supported when both ends of the beam is hinged. Is it clear? This is hinge support. Is it clear? Similarly here we have hinge, correct? Now the difference is one support is fixed and another support is having rollers, yes or no? Then this kind of supported beam is called as simply supported beam. Is it clear? This is called as simply supported beam. Now you can see these are the symbolic representation of cantilever and simply supported beam. If it is symbolic representation, then how we can represent the actual this beam? दोस्तों एक्चुअल में क्या होगा, यू कैन सी हियर वी हैव फिक्स्ड सपोर्ट. तो फिक्स्ड सपोर्ट कैसे होगा? व्हेन some portion of the beam is placed inside the concrete masonry. yes or no? करेक्ट. यहाँ पे कंक्रीट वॉल के अंदर अगर हम इसको यहाँ पे फिट कर दें कुछ पोर्शन इस पर्टिकुलर बीम का, then you can say this is fixed support. ऐसा no, otherwise ये fixed support नहीं कहलाएगा. Correct. And similarly when we talk about hinge support, then suppose you have a beam like this and this beam is fixed into the wall by nut bolt arrangement. yes or no, like this. नट एंड बोल्ट की हेल्प से अगर मैं इसको यहाँ पे फिक्स करूँ, करेक्ट है, तो दोस्तों ये जो सपोर्ट कहलाएगा दिस इज कॉल्ड एज हिंज. एक्चुअली हियर यू कैन सी यहाँ पे एक्चुअली मूवमेंट तो रजिस्टर्ड है पर फिर भी हम कह रहे हैं कि देयर इज नो रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे दोस्तों जो नट बोल्ट की हेल्प से यहाँ पे रेजिस्टेंस, दैट इज वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, और इसे हम अज्यूम कर लेते हैं ये दिस बीम कैन रोटेट अबाउट दिस. यस आर नो? करेक्ट. एक्चुअल में होगा नहीं बट फिर भी हम अज्यूम कर सकते हैं एज कंपेयर टू दिस वन. करेक्ट है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सपोर्ट. एक्चुअल में जो वोल्टेज सपोर्ट्स होते हैं हम हिंज सपोर्ट कहते हैं. अदरवाइज अगर आप हैंड में ही देखो, सपोज दिस इज माय हैंड, देन हियर अबाउट दिस जॉइंट दिस हैंड कैन मूव. यस आर नो? तो यहाँ पे जो सपोर्ट होगा दिस इज कॉल्ड एज हिंज सपोर्ट. मतलब जिसके अबाउट फ्रीली ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है, करेक्ट है, तो उसे कह सकते हैं हम hinge support. And now if we talk about roller support, then in actual practice there is no rollers in the beam. correct. एक्चुअल प्रैक्टिस में दोस्तों कोई भी रोलर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराया जाता.
but these rollers can provide axial translation, yes or no? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये ट्रांसलेटरी मोशन प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर हम यही अरेंजमेंट यहाँ पे कुछ प्रोवाइड कर दे लाइक दिस, कैन सी हियर लाइक दिस, करेक्ट. यहाँ पे हमने एक स्लॉट कट कर दिया, रिमेनिंग पोर्शन इज सॉलिड पोर्शन, इज इट क्लियर? अब नाउ सपोज यू हैव अ बीम लाइक दिस. तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास बीम है, करेक्ट. एंड नाउ इफ दिस बीम इज फिक्स्ड विथ दिस नट एंड बोल्ट अरेंजमेंट, यस आर नो हियर? अगर ये नट एंड बोल्ट से अगर हम इसको फिक्स करें, देन यू कैन सी हियर can easily translate along this direction, yes or no? Because here we have provision for horizontal translation. So whenever you have a beam is fixed like this, it has horizontal translation. Is it clear? Then this is called as roller support. Now you can see here, because of these rollers, this can translate along this direction, correct? तो horizontal direction में अगर बीम ट्रांसलेट हो रही है दोस्तों, हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज रोलर सपोर्ट. ये एक्चुअल में ऐसे सपोर्ट होती है. और यहाँ पे जो भी हम लोग यहाँ पे दोस्तों अभी और आने वाले कंप्लीट लेक्चर में जो सिंबल्स ड्रॉ करने वाले हैं, दीज आर कॉल्ड एज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. इज इट क्लियर? दीज आर कॉल्ड एज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज कैंटिलीवर बीम एंड व्हाट इज सपोर्टेड बीम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स सपोर्ट, रोलर सपोर्ट एंड हिंज सपोर्ट आल्सो, करेक्ट. Now another beam, that is overhanging beam, correct. You can see here again, this is a simply supported beam. This is actually a simply supported beam whose both ends are hinged, but some portion of the beam is overhang, means some portion of the beam is unsupported. You can see here इस पोर्शन में कोई भी सपोर्ट नहीं है दोस्तों, करेक्ट है. इस अनसपोर्टेड वाले बीम क्या कहेंगे? कॉल्ड एज ओवरहैंगिंग बीम. दिस एंटायर बीम इज कॉल्ड एज ओवरहैंगिंग, करेक्ट. अब ये ओवरहैंगिंग क्या कैसे हो सकता है? इधर वन साइड और बोथ साइड. यू कैन सी हियर इस पर्टिकुलर बीम में देखो दोनों साइड ओवरहैंग है, और इस पर्टिकुलर बीम में ओनली वन साइड ओवरहैंग है. सिंपली हम इसे कह देते हैं फर्स्ट वन को दैट इज वन साइड ओवरहैंगिंग बीम, एंड अनदर सेकंड वन को हम कह सकते हैं बोथ साइड ओवरहैंगिंग बीम, यस और नो? तो दोस्तों सिंपली सपोर्टेड बीम में ही अगर कोई पोर्शन ओवरहैंग है तो उसे आप ओवरहैंगिंग बीम कह सकते हो. Next one, that is fixed support. Now you can see if both ends of the beam is rigidly fixed. Is it clear? Both ends of the beam is rigidly fixed, then this is called as fixed beam. मतलब समझो यहाँ पे दो कैंटिलीवर बीम है और इनको यहाँ पे बीच में ज्वाइन कर दिया गया एक्चुअली, करेक्ट है. तो हम कह सकते हैं दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम, यस और नो? सॉरी, नॉट फिक्स्ड बीम, नॉट सिंपली सपोर्टेड. दोस्तों याद रखना, किसी भी बीम अगर दोनों एंड को हम फिक्स कर दें, करेक्ट, एंड इट डज नॉट अलाउ द freely rotatory motion about the joint or about the support, then this is called as fixed beam. Next one, that is continuous beam. Now you can see here, if you have more than two supports, this is support 1, support 2, support 3 and this is support 4, yes or no? तो दोस्तों अगर दो से ज्यादा सपोर्ट अगर यहाँ पे अवेलेबल है, करेक्ट है, then this is called as continuous beam. Next one, that is prop cantilever beam. Now you can see the cantilever beam, if provide roller support end, then this is called as prop cantilever beam, yes or no? फ्री एंड में हम दोस्तों यहाँ पे रोलर्स को प्रोवाइड कर दिए, रोलर सपोर्ट लगा दिए, हमने कह दिए कॉल्ड एज प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम. इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं. That is types of supports and reaction. Is it clear? That types of supports and reaction. Now you can see this is first one, that is fixed support, correct. A beam built into a rigid support which does not allow any type of movement or rotation, known as fixed or built up in support, correct. You can see here, if you try to translate this beam along the horizontal direction by applying a horizontal force like this, so this is H, then this beam cannot translate because of this support. It means this support can apply some horizontal resistance against the applied horizontal load. Is it clear? Therefore here we have horizontal reaction,
Similarly, when you try to translate this beam in the vertical direction by applying a vertical force like this, that is P, but because of this support, this beam cannot translated, yes or no? Why it is not translated? Because this support can apply some resistance against this vertical load, yes or no? Then here we can get vertical reaction, that is RV. And similarly, if you want to rotate this anti-clockwise direction by applying some movement, this is applied movement, correct? Then again this support cannot allow the rotational of this beam in the anti-clockwise direction, because it is subjected to some, it is applying some resistive movement M against the applied movement, yes or no? So in this fixed support, here we have number of unknowns is equal to number of number of reactions की अगर हम बात करें दोस्तों, and here we have three number of reactions, that is horizontal reaction, vertical reaction, and movement, is a rotatory effect, correct? And similarly, when we talk about hinge support, then you can see here this beam can rotate about this, means there is no moment of resistance, yes or no? Of resistance is here 0, correct? But if you try to translate this beam in the horizontal direction, then not possible. And similarly, if you try to translate this beam in vertical direction, then again it is not possible because of this support, because it is applying horizontal and vertical reaction, correct? But ये दोनों reaction दोस्तों, जो कोई भी reaction का use होती है, कोई भी external load act हो रहा हो, correct है? Third one, that is roller support. So now you can see here in this support, if horizontal translation is completely permitted, yes or no? करेक्ट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूँ तो बीम हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट हो सकती है। इस तरीके की बीम कहेंगे दोस्तों रोलर सपोर्ट, करेक्ट? और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा, दिस वन इज इक्वल टू 0, बट स्टिल हियर वी हैव वर्टिकल रिएक्शन, एंड एज यू नो दैट ऑल्सो अ हिंज सपोर्ट, देयरफॉर हियर द रेजिस्टिव मोमेंट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हो गए दोस्तों? Number of reactions equal to 1, and here we have number of reactions equal to number of reactions equal to 2, yes or no? करेक्ट? तो देखा हमने यहाँ पे कि जब आपके पास फिक्स सपोर्ट था तो हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने थे? 3। जब हमारे पास हिंज सपोर्ट है तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितने? 2। जब आपके पास रोलर सपोर्ट है तो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने? ओनली 1। इज इट क्लियर? अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, करेक्ट? दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे फॉर टू डायमेंशन, मतलब प्लेन लोडिंग कंडीशन में अगर हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन चेक करें तो क्या हो सकती है? तो दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन हो सकती है, फर्स्ट यू सी हियर, सपोज दिस इज अवर रेफरेंस एक्सिस सिस्टम, सपोज दिस इज जेड एक्स एक्सिस and this is y axis, is it clear? And here we have a two dimensional body. Now you can see this body may be subjected to horizontal force and vertical force, yes or no? Correct? Now you can see a body, this two-dimensional body is said to be in equilibrium when the net force acting in the horizontal direction, it must be equal to 0, or simply you can say net force acting along, अगर मैं इसे z axis consider करूँ दोस्तों, and this is y with respect to our reference axis system, then fz must be equal to 0, correct? और अगर हम इन जनरल यहाँ पे साइन कन्वेंशन करें दोस्तों, जनरली लोग जो यूज करते हैं इस डायरेक्शन को x कहेंगे और इस डायरेक्शन को z। यहाँ पे मैं इसे क्या कह सकता हूँ? fx is equal to 0. Similarly, you can see here all the vertical forces is also equal to 0, or simply it can be represented by summation of all the forces along y direction is equal to 0, करेक्ट? तो ये दोस्तों पहले ये दो फोर्स की कंडीशन है, और थर्ड कंडीशन है दैट इज मूवमेंट अबाउट जेड एक्सिस, इट मस्ट बी इक्वल टू 0, करेक्ट है? ये बॉडी क्या हो सकता है? सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में दोस्तों सिर्फ ट्रांसलेट हो सकता है, करेक्ट है? बट कभी भी एक्स वाई डायरेक्शन में रोटेट नहीं हो सकता, करेक्ट? और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आप अपनी सपोज आपके पास यहाँ पे एक टेबल है, आपके सबके पास टेबल होगा, करेक्ट? और इस टेबल में आप अपना मोबाइल रख देना लाइक दिस, करेक्ट? दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप इस मोबाइल को रोटेट करने की कोशिश करोगे, इस प्लेन के वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ही रोटेट हो पाएगा, करेक्ट है? और इसके अलावा किसी भी एक्सिस के अबाउट, चाहे वो एक्सिस ये हो या ये हो, दोनों एक्सिस के अबाउट कभी भी ये रोटेट नहीं हो पाएगा, यस और नो?
It can only rotate about the y axis. Is that clear? But there is no rotational motion possible about x axis and z axis. Correct? क्योंकि इस पर्टिकुलर प्लेन में ही आपने टू डायमेंशनल बॉडी को रख दिया है. करेक्ट है. तो ऑटोमेटिकली एक्स और जो भी प्लेन में रखा है, जो कि जिस भी एक्सिस से बनता है, सपोज यहाँ पे एक्स और जेड से अगर ये प्लेन बन रहा है, एक्स जेड एक्सिस के अबाउट कभी भी रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा. इट दिस बॉडी कैन रोटेट ओनली अबाउट वर्टिकल एक्सिस. और ये एक्सपेरिमेंट आप घरों में भी कर सकते हो. टेबल में आप एक फोन रख लेना और उसको आप रोटेट करके देख लेना कि किस प्लेन के अबाउट ये, किस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो सकता है और किस एक्सिस के अबाउट पॉसिबल नहीं हो सकता है. करेक्ट है. तो आई थिंक दोस्तों इतना इनफ है, आपको समझ में आ गया होगा. यहाँ पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है फॉर टू डायमेंशनल बॉडी. यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन. स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों कितनी, ओनली 3. करेक्ट. और वहीं पर अगर मैं सेकेंड कंडीशन लूँ, दैट इज थ्री डायमेंशनल बॉडी. अगर हमारे पास कोई थ्री डायमेंशनल बॉडी है एंड सपोज दिस कैन सी हियर, दिस इज योर रेफरेंस एक्सिस सिस्टम, y, this is x and this is z, and similarly here we have three dimensional body also. Correct. Now you can see this body can rotate about this axis, this body can rotate about this axis, this body can rotate about this axis. Similarly this body can translate about this axis, body can translate about this, and this body can translate about this axis. ऐसा नो. तो यहाँ पे इतने सारे मोशंस पॉसिबल हैं. करेक्ट है. तो दोस्तों इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो बॉडी थ्री डायमेंशनल बॉडी है, थ्री डायमेंशनल स्पेस में कंडीशन कब हो सकती है, व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन इज, नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग वाई डायरेक्शन इज, एंड नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग जेड डायरेक्शन इज इक्वल. पहले तो ये फोर्स वाली कंडीशन होती है. एंड सिमिलरली नेट नेट मूवमेंट अबाउट एक्स एक्सिस, नेट मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस इज इक्वल टू जीरो, एंड नेट मूवमेंट अबाउट जेड एक्सिस. दोस्तों इतने अगर कंडीशन को कोई भी थ्री डायमेंशनल बॉडी इन तीनों कंडीशन को वैलिडेट करे, करेक्ट है, सेटिस्फाई करें, तो हम कह सकते हैं कि थ्री डायमेंशनल बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. तो नंबर ऑफ इक्वेशंस की अगर हम बात देखें यहाँ पे दोस्तों, नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे टोटल कितने मिले, 6 इक्वेशन. नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन इक्वल टू 6. टू डायमेंशनल बॉडी के लिए दोस्तों हमें ध्यान देना, हियर वी हैव only 3 equations, and for three dimensional body here we have 6 equations. Correct. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन फॉर स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट. डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट क्या कहलाता है दोस्तों, यू कैन सी. फर्स्ट हियर आई एम गोइंग टू राइट द कंडीशन ऑफ स्टैटिकली, द कंडीशन ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेट, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम. अब कोई भी बीम स्टैटिकली डिटर्मिनेट कब कहलाएगी, यू कैन सी हियर. दोस्तों क्या है, इसके लिए कुछ कंडीशंस है, और वो कंडीशन क्या है, you can see here, if number of unknowns, if number of unknowns, या सिंपल कह सकते हैं नंबर ऑफ रिएक्शंस is less than or equal to the number of available static equilibrium condition. स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन. करेक्ट. अगर आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन है तो हम कह सकते हैं दिस बीम इज कॉल्ड एज स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम. करेक्ट. एंड दिस बीम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग स्टैटिक इक्विलिब्रियम. ऐसा नो, इस तरीके की बीम होंगी दोस्तों, हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं. बट another condition that is statically determinate beam. करेक्ट है दोस्तों. अगर यहाँ पे स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम है, यहाँ पे क्या हो सकता है दोस्तों, नंबर ऑफ unknowns
number of unknowns is greater than the number of unknowns is greater than the number of available static इक्विलिब्रियम इक्वेशन। करेक्ट है। अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन हो दोस्तों तो इसे कह देते हैं हम स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम एंड सच बीम्स कैन नॉट बी सॉल्व। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट में, सच बीम कैन नॉट बी सॉल्व कैन नॉट बी सॉल्व बाय इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से बस हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वी नीड सम एक्स्ट्रा रिलेशंस फॉर फाइंडिंग दीज, फॉर सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स। और वो कैसे सॉल्व होगा? बाय ऑब्टेनिंग सम इक्वेशंस विद हेल्प ऑफ डिफ्लेक्शन। करेक्ट है दोस्तों। तो इस चैप्टर के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे डिफ्लेक्शन। वहां पे हम आपको बताएंगे कि हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू सॉल्व इनडिटरमिनेट्स बीम विद हेल्प ऑफ डिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट्स। ये सानो करेक्ट। चले अब नेक्स्ट, अब मैं यहीं पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कौन सी बीम स्टैटिकली डिटरमिनेट है एंड स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। तो ऑलरेडी हियर वी हैव 6 बीम्स। अगर मैं फर्स्ट कैंटिलीवर बीम की बात करूं दोस्तों, नाउ यू कैन सी here we have horizontal reaction, here we have vertical reaction, and similarly here we have a resistive movement. Yes or no, like this? So this is horizontal, this is vertical reaction, horizontal reaction, and this is resistive movement. यहाँ पे रेजिस्टेंस लग रहे हैं। अब अगर दोस्तों यहाँ पे देखो, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखूं तो नंबर ऑफ अननोन्स जो होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ अननोन्स या नंबर ऑफ रिएक्शंस, यहाँ पे देखो दिस इज इक्वल टू क्या हो रहा है? नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन। अवेलेबल इक्वेशन, ये सर नो। यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ अननोन्स है वो नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स कितना है दोस्तों? 3, और यहाँ पे नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन है 3। ये सर नो। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन पे हो रही है? फर्स्ट कंडीशन, डिटर्मिनेट कंडीशन। इट मींस दिस कैंटिलीवर बीम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग ओनली static equilibrium condition. Next one, that is simple supported beam. Now you can see here in this, suppose here we have first vertical, this is support 1 and this is support 2. Then here we have vertical reaction RB1, and similarly here we have a horizontal reaction, that is RH1, and similarly here we have a vertical reaction, that is RV2, and here there is no horizontal reaction. Is it clear? Once again you can see here the number of unknowns जो है यहाँ पे दोस्तों, here we have number of unknowns कितने मिले? 3। और वहीं पे नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर हम देखें तो ये रिमेन प्लेनर बॉडी के लिए तो 3 ही होंगे। तो अगेन ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। तो सिंपली हम कह सकते हैं सिंपली सेपरेट बीम इज नथिंग बट दिस इज स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम, एसडीबी कह सकते हैं। एंड दिस कैंटिलीवर बीम इज आल्सो कॉल्ड एज स्टैटिकली टर्मिनेट बीम। यस और नो? इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्टैटिकली टर्मिनेट बीम। करेक्ट। अब नेक्स्ट आता है ओवरहैंगिंग बीम के बारे में। देखो यहाँ पे वंस अगेन हियर वी गेट वन रिएक्शन, दिस इज 1, दिस इज 2, देन हियर वी कैन गेट RB1 एंड सिमिलरली हियर वी कैन गेट RV2, और यहाँ पे क्या मिलने वाला दोस्तों? RH1। करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इस पर्टिकुलर बीम के लिए देखूं तो नंबर ऑफ अननोन्स यहाँ पे अगर हम लिखें, यहाँ पे कितने मिलेंगे? 3। और अगर मैं इस पर्टिकुलर बोथ साइड ओवरहैंग के can see here this is RV1 and here we have RH1 and here we have RV। करेक्ट। तो यहाँ पे कितने हो गए नंबर ऑफ अननोन्स? Again here we can get number of unknowns is equal to
थ्री ओनली। इज इट क्लियर? तो ऑब्वियसली दोनों ही केस में नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशंस अगर हम लिखें, अगेन फॉर बोथ द केसेस हियर वी हैव थ्री इक्वेशंस। तो यहाँ पे अगेन ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो हम कह सकते हैं कि ओवरहैंगिंग इट मे बी वन साइड और बोथ आर कॉल्ड एज स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। क्लियर? इसे हम कहेंगे स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। करेक्ट। नेक्स्ट आता है दोस्तों फिक्स्ड बीम। Now you can see in this fixed beam, suppose this is support 1 and this is support 2. Is that clear? And in support 1 you can see here we have vertical reaction, that is RV1. Here we have horizontal reaction, horizontal reaction RH1, and this is vertical reaction RV1. And similarly you can say this is RH, and here we have RV, and along with this here we have resistive movement, that is M1, and here we have resistive movement, that is M2. Now you can see here, if here we can write the number of unknowns, correct, number of unknowns. तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू 6, बट द अवेलेबल इक्वेशंस कितनी है? नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन है दोस्तों 6, करेक्ट। टोटल अननोन 6 है, इक्वेशंस अवेलेबल जो है वो भी 6 है, करेक्ट है। तो दोस्तों ये क्या हुआ यहाँ पे, सॉरी नॉट, यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, दिस इज नॉट 6 एक्चुअली, हियर वी हैव नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशंस इज इक्वल टू 3 ओनली। अगेन दिस इज प्लेनर बॉडी है, करेक्ट है। तो अगेन हम कह सकते हैं दिस कॉल्ड एज स्टैटिकली, दिस कॉल्ड एज स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। इट मींस कि इस बीम को सॉल्व करने के लिए आपको एक्स्ट्रा इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, और कितनी जरूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ अननोन्स ज्यादा होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन 6 है, यहाँ पे अवेलेबल इक्वेशन 3 है, इसका मतलब है कि 3 मोर इक्वेशन अगर कहीं से मिल जाए, करेक्ट है, तो हम इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट है। तो विद हेल्प ऑफ डिफ्लेक्शन वी नीड टू फाइंड आउट 3 मोर इक्वेशंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यस और नो? तो अगर आपसे पूछा है कि हाउ मेनी डिग्री दिस बीम इज हैविंग इनडिटरमिनेंसी, तो दोस्तों सिंपली आप कह सकते हो नंबर ऑफ अननोन्स माइनस नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशंस, तो 6 माइनस 3 दैट इज 3। इसके इनडिटरमिनेंसी है 3 डिग्री इनडिटरमिनेंसी है, इट मींस यू नीड ओनली 3 इक्वेशंस, मोर इक्वेशंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यस और नो? And similarly you can see here, if we talk about beam, then you can see here we have first vertical reaction, that is R1, and here horizontal reaction RH1, and here you can get RV2, here we can get RV3, here we can get RV4. तो number of unknowns कितने हो गए दोस्तों? Number of unknowns equal to 1 2 3 4 5, करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ अननोन्स है 5, लेकिन नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं? 3। यहाँ पे 2 डिग्री की यहाँ पे इंडिटरमिनेंसी है, यस और नो? 2 डिग्री इंडिटरमिनेंसी, correct, it means you need 2 more equations to solve this problem, yes or no? And now if we talk about prop cantilever beam, and this first support is a fixed support, another one is roller support। यहाँ पे देखो एक horizontal reaction आएगा RH1, यहाँ पे एक vertical reaction आएगा RV1, and similarly here we can get a resistive moment M1, and similarly here we have vertical reaction, that is RV2, yes or no? तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम नंबर ऑफ अननोन्स की अगर हम बात करें, यू कैन सी हियर number of unknowns, then here we can get 4, 1 2 3 and 4, correct। the number of equations है, number of available equations is 3। यहाँ पे दोस्तों 1 डिग्री इंडिटरमिनेंसी, यहाँ से क्या पता चला कि 1 डिग्री इंडिटरमिनेंसी है, यस और नो? 1 डिग्री इंडिटरमिनेंसी मतलब इफ वी नो, करेक्ट। अगर यहाँ पे दोस्तों एक मुझे एक्स्ट्रा इक्वेशन कहीं से मिल जाए, तो मैं इमीडिएट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ,
तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि डिटर्मिनेंसी क्या होता है, इनडिटर्मिनेंसी क्या होता है, करेक्ट है। और ये इवन आप लोग एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे आप पढ़ोगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप प्रोसेस के केस में भी यही सेम डिटर्मिनेंसी डिटर्मिनेंसी पढ़ने वाले हो, करेक्ट है। और इवन ट्रेसेस में आपको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों इंडिटर्मिनेंसी एंड डिटर्मिनेंसी देखने को मिलेगा। एंड सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सिविल में बहुत सारा ये कॉन्सेप्ट ये यूज में आने वाला है इन केस ऑफ स्ट्रक्चर डिजाइन, ये आर नो, करेक्ट। तो ये दोस्तों थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि कौन सी बीम डिटर्मिनेंट है, कौन सी बीम डिटर्मिनेंट है, कितने डिग्री की डिटर्मिनेंसी है, कितनी और ज्यादा इक्वेशंस की जरूरत है, करेक्ट है। तो यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ बीम क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या है, करेक्ट है। फिर उसके बाद हमने देखा डिटर्मिनेंसी डिटर्मिनेंसी कंडीशंस क्या है, और कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं विच बीम इज डिटर्मिनेंट एंड विच बीम इज इनडिटर्मिनेंट, करेक्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज टाइप्स ऑफ लोड। चलिए देखते हैं इस टाइप्स ऑफ लोड के बारे में। फर्स्ट अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बताऊं, फर्स्ट हियर वी कैन गेट पॉइंट लोड, और सिंपली कैन से दिस इज concentrated load, concentrated load, is it clear? This point load or concentrated load. Number two, that is uniformly distributive load, UDL. Number three, that is uniformly varying load. Number four, that is only varying load. Yes or no? और नेक्स्ट हम कह सकते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव मूवमेंट, करेक्ट। इतने तरीके के लोड होते हैं दोस्तों। अगर मैं पॉइंट लोड की बात करूं तो सपोज इफ हैव अ बीम लाइक दिस, तो यहाँ पे कैंटिलीवर बीम ले, यहाँ पे दोस्तों लोड कैसे एक्ट हो रहा है, एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड एक्ट हो रहा है, जो कि बहुत स्मॉल एरिया पे कंप्लीट होल लोड यहाँ पे एक्ट हो रहा है, इसे कह देते हैं हम दोस्तों कॉन्सेंट्रेटेड लोड। नेक्स्ट इन दिस पीस, सपोज इफ द लोड इज varying uniformly like this, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ तरीके से है दोस्तों, करेक्ट है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और इसी को हम कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोथ रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट, इज इट क्लियर? यू कैन सी हियर, यहाँ पे कहीं भी चले जाओ आपको थ्रू द लेंथ सेम मैग्नीट्यूड का यहाँ पे दोस्तों लोड मिल रहा है। अगर कुछ इस तरीके से लोडिंग हो बीम में, करेक्ट है, तो इसे दोस्तों हम कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर। इसे कहते हैं हम लोड इंटेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, करेक्ट है। यहाँ पे देखो ये जो हाइट है दिस इज कॉल्ड एज, अगर यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से शो करें तो इसकी जो हाइट कहलाएगी वो डब्ल्यू कहलाएगी, करेक्ट है। और अगर आपको टोटल लोड पता करना है तो यहाँ पे देखो लोड विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ वेरी कर रहा है, तो अगर मैं जितनी भी लेंथ में आपको लोड पता करना है उस लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको नेट उस लोड में क्या फोर्स एक्ट हो रहा है वो मिल जाएगा, क्या लोड एक्ट हो रहा है वो मिल जाएगा, करेक्ट है। तो जब भी लोड का वेरिएशन कुछ तरीके से हो तो इसे कह देते हैं हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव लोड, इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड। अगर लोड का वेरिएशन लीनियर हो दोस्तों लाइक दिस, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो लोड का वेरिएशन है दिस इज लीनियर वेरिएशन, एंड व्हेनेवर वी हैव a load which is varying linearly, करेक्ट। अगर हमारे पास कोई भी लोड है जो कि लीनियरली वेरी करे दोस्तों लाइक दिस, करेक्ट, इस तरीके के लोड को हम कहते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, इज इट क्लियर? its maximum magnitude is w and here we have 0, is it clear? And like this फोर्स कुछ इस तरीके से एक्ट हो रहा है थ्रू द लेंथ, एंड दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। नेक्स्ट होगा दोस्तों ओनली वेरिंग लोड। if the load variation is not uniform, like it is varying like this, correct, इस तरीके के लोड को कहते हैं हम only varying load, is it clear? Next one, that is uniformly distributed movement. Suppose the movement is uniformly varying like this, इस तरीके से vary कर रहा हो दोस्तों, इसे कह देते हैं हम uniformly distributed movement, and it is represented by small m, and this is also called as movement intensity, that is न्यूटन मीटर पर मीटर लेंथ में इस न्यूटन मीटर से m न्यूटन मीटर मूवमेंट की वैल्यू चेंज हो रही है, ऐसा नो, इसे कहते हैं हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव मूवमेंट, ये सा नो। तो इतने तरीके के लोड्स हैं दोस्तों जो आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। इवन वायरिंग लोड का प्रॉब्लम तो जनरली नहीं आता है, सिर्फ आपको मोस्टली जो प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं कंसंट्रेटेड लोड के होंगे, या यूडीएल होगा या यूबीएल होगा, एंड सम फ्यू प्रॉब्लम्स आज फ्रॉम this UDM portion, correct?
ओके, तो ये हो गया दोस्तों कुछ फंडामेंटल्स। अब बात करते हैं कुछ साइन कन्वेंशन के बारे में। तो लेट्स सी हियर फर्स्ट, दैट इज शियर फोर्स। शियर फोर्स यहाँ पे देखो, मैंने ऑलरेडी आपको शियर फोर्स की डेफिनेशन बताई थी। क्या बताया था कि व्हेन द लोड इज एक्टिंग पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, that this is called as shear force. Yes or no? But with respect to this, still here we have shear force like this, but यहाँ पे इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। करेक्ट है? अगर सपोज इफ यू वांट टू फाइंड आउट stress at any point or force at any point of the beam, करेक्ट? तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से हम इसको पता करेंगे। एंड यू कैन सी दिस इज supported beam where one end is fixed or hinge support and other end is having rollers। दोस्तों ये बीम है एंड दिस इज इट्स क्रॉस सेक्शन। इज इट क्लियर? दिस इज इट्स क्रॉस सेक्शन, जो कि यहाँ पे दो सपोर्ट लगे हुए हैं। एंड दिस बीम इज सब्जेक्टेड टू सम लोड एट द मिड स्पैन ऑफ द बीम लाइक दिस, दैट इज लोड पी। एंड और ये क्या है? पॉइंट लोड। यस और नो? और अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ दोस्तों, तो लेंथ क्या होगा यहाँ पे? is nothing but this is L by 2 and this is L by 2. Yes or no? And suppose this is A end and this is and since you can see here, since this is symmetrical, therefore यहाँ पे जो रिएक्शन आएगी दोस्तों, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। वो आएगा दोस्तों P by 2 and P by 2 at both side। सिमेट्रिकल बीम है तो दोनों साइड जो रिएक्शन आने वाली है वो सेम मैग्नीट्यूड की आने वाली है। इज इट क्लियर? ये हो गया। अब हमें यहाँ पे देखना साइन कन्वेंशन। तो देखो यहाँ पे जो फोर्स P एक्ट हो रहा है, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड पोर्शन है और एक लेफ्ट साइड पोर्शन। यस और नो? अब मुझे इन दोनों में से किसी सेक्शन में, किसी भी रीजन में एक सेक्शन कट करना है। सपोज यहाँ पे मैं एक सेक्शन कट करता हूँ राइट पोर्शन में, एंड दिस इज नथिंग बट, ये सेक्शन क्या है दोस्तों? दिस इज नथिंग बट दिस इज एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन। क्लियर? एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन। अब मुझे इस एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन में पता करना है कि हाउ मच नेट फोर्स एक्टिंग इन बीम। करेक्ट है दोस्तों? यू कैन सी हियर, यू जस्ट फाइंड आउट द एल्जेब्रिक सम। शियर फोर्स की अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन बताऊं, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, all the transverse forces, either right side of the section means in this section, yes or no, either right side of the section or left side of the section is called as shear force। करेक्ट? मतलब आपको क्या करना है कि इस सेक्शन में आपको नेट फोर्स पता करना है। एंड ऑब्वियसली दिस इज अ शियर फोर्स, व्हाई? बिकॉज इट इज एक्टिंग पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। यस और नो? तो आपको करना क्या है कि इस सेक्शन में बैठ के आपको इस एंड से, अगर आपको राइट पोर्शन पता करना है, तो राइट एंड से, एक्सट्रीम एंड से सारे फोर्स को एल्जेब्रिकली ऐड करना स्टार्ट कर दो। एल्जेब्रिकली क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव, तो उनको हम प्रॉपर साइन के साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो आप देखोगे कि नेट फोर्स क्या मिल रहा है इस सेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज शियर फोर्स एट दैट सेक्शन। एंड यही सेम प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हो फ्रॉम लेफ्ट एंड। यस और नो? शियर फोर्स यहाँ से डेफिनेशन निकल के आई कि algebraic sum of all the forces either right side of the section or left side of the section is called as shear force। yes or no? तो आई थिंक दोस्तों ये समझ में आया shear force होता है क्या है। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखो। सपोज दिस इज योर क्रॉस सेक्शन। मैं यहाँ पे आपको सिंपल सा साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ और फिर एक जुगाड़ भी बताऊँ। करेक्ट है? क्योंकि कई बार ये स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो सपोज ये क्रॉस सेक्शन है एक्स एक्स, आपने किसी बीम में कहीं भी कट किया हुआ है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द, या सिंपली हम कह सकते हैं कि सपोज लोड के राइट साइड में एक्स एक्स हमने एक क्रॉस सेक्शन कट किया है, और इस सेक्शन में अगर हम देखें दोस्तों, तो अगर यहाँ पे इस सेक्शन के राइट साइड कोई डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो, करेक्ट, लाइक दिस, और इस सेक्शन के लेफ्ट साइड कोई अपवर्ड फोर्स एक्ट हो, इन दोनों फोर्स को कहेंगे दोस्तों दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव शियर फोर्स। करेक्ट है? वहीं पे अगर मैं इस सपोज इस लोड के लेफ्ट साइड यहाँ पे एक सेक्शन कट करता हूँ, like this, and suppose this cross section is nothing but this is y, करेक्ट? लोड के लेफ्ट साइड और लोड के राइट साइड।
करेक्ट। यहाँ पे अगर मैं इस वाई वाई सेक्शन को कंसिडर करूँ दोस्तों, इस वाई वाई सेक्शन के अगर राइट साइड कोई भी फोर्स अगर अपवर्ड एक्ट हो रहा हो, करेक्ट है, कोई भी फोर्स यहाँ पे अपवर्ड एक्ट हो रहा हो, या थोड़ा सा चलो मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू इसी क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में ही चलो बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे सपोज सेम क्रॉस सेक्शन हम कंसिडर करते हैं, दैट इज एक्स एक्स पॉजिटिव। तो आई थिंक समझ में आ गया कि अगर इस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड अगर हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा हो, करेक्ट है, और राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड हमारे पास अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा हो, तो इसे हम पॉजिटिव कहेंगे। एंड सिमिलरली इसी क्रॉस सेक्शन के राइट साइड अगर हमारे पास कोई अपवर्ड फोर्स हो, करेक्ट, और लेफ्ट साइड अगर यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो, तो दोस्तों इसे कहते हैं हम नेगेटिव शियर फोर्स, कॉल्ड एज नेगेटिव शियर फोर्स। क्लियर? ये बेसिक साइन कन्वेंशन है। अब मैं यहाँ पे एक जुगाड़ बताता हूँ। फर्स्ट जुगाड़ ये है, इफ एनी फोर्स इज ट्राइंग टू any force is trying to produce if any force is trying to produce a if any force is trying to produce a clockwise clockwise couple about the cross section, then it will be considered as positive shear force and vice versa। yes or no? अगर यहीं पे ये एंटी क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस करने की कोशिश करे, इस फोर्स को मैं नेगेटिव शियर फोर्स कहूंगा। अब देखो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि पॉजिटिव किसे कहेंगे, नेगेटिव कहेंगे। अब इसको आइडेंटिफाई करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेम बीम लाइक दिस, इसके रिस्पेक्ट, करेक्ट है। चलिए देखते हैं। once again here I am going to draw this simply supported beam like this, and at mid span here we have load like this. Is that clear? And you can say suppose this is support A and this is support B. Here we have a vertical direction, that is RVA, and this here we have RVB, correct। और इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, it is P/2 and this is also P/2 because यहाँ पे जो लोड एक्ट हो रहा है वो मिड स्पैन पे लग रहा है, दैट इज P, करेक्ट है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक सेक्शन यहाँ पे कट करूँ लाइक दिस इन बिटवीन सेक्शन, करेक्ट, और यहाँ पे शियर फोर्स लिखना, तो शियर फोर्स यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ, शियर फोर्स अबाउट दिस क्रॉस सेक्शन व्हेन वी मेजर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ जब हम चलें, क्या आएगा दोस्तों, आप देख सकते हो दिस P/2 फोर्स इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस अ कपल अबाउट दिस एक्स क्रॉस सेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये सानो। और ऑब्वियसली मैंने बताया था कि कोई भी फोर्स अगर एंटी क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस करने की कोशिश करे तो उसे हम नेगेटिव शियर फोर्स कहेंगे। सिंपली हियर वी कैन राइट -P/2, करेक्ट, -P/2। आई थिंक समझ में आ गया नेगेटिव क्या है। और यहाँ इन क्रॉस सेक्शन एंड बी पॉइंट देयर इज नो फोर्स, तो नेट फोर्स यही होगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था यहाँ पे कि अगर राइट पोर्शन में डाउनवर्ड और लेफ्ट पोर्शन में अपवर्ड लग रहा हो, ये कहलाएगा पॉजिटिव शियर फोर्स। और वहीं पे देखो यहाँ पे अगर राइट पोर्शन में अपवर्ड और लेफ्ट पोर्शन में डाउनवर्ड कोई फोर्स एक्ट हो, तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव शियर फोर्स। और ये इस क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में अगर मैं इस आरबीबी की बात करूं, ये अपवर्ड लग रहा है, मींस इस सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कि हम इसे कहेंगे नेगेटिव शियर फोर्स, करेक्ट। तो आई थिंक दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट अब मूव करते हैं, नेक्स्ट दैट इज क्रॉस सेक्शन लाई ऑन इन बिटवीन AC, तो शियर फोर्स अबाउट, और चलिए वन मोर थिंग, इसको मैं वाई वाई कह देता हूँ, करेक्ट है, वाई वाई क्रॉस सेक्शन। नाउ शियर फोर्स अबाउट दिस क्रॉस सेक्शन XX, एंड वंस अगेन वी मेजर द फोर्स फ्रॉम दिस राइट टू लेफ्ट। तो दोस्तों यहाँ पे देखो जो फर्स्ट फोर्स है P/2,
दिस इज नेगेटिव पी बाई टू, यस आर नो, क्योंकि इस सेक्शन के राइट साइड अपवर्ड फोर्स लग रहा है और सेक्शन के राइट साइड अगर कोई अपवर्ड फोर्स लगेगा तो वो नेगेटिव कहलाएगा। और नेक्स्ट जो पी आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और इस सेक्शन के राइट साइड में डाउनवर्ड लग रहा है, तो मैं इसे क्या कहूंगा, प्लस पी, यस आर नो। तो नेट वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगी पी बाई टू। आई थिंक दोस्तों समझ में आया इसे हमने प्लस माइनस कैसे लिख दिया। एक तो आपके पास ये तरीका है, करेक्ट है, अगर आपको याद रहता है तो, करेक्ट है। अगर सेक्शन के राइट साइड डाउनवर्ड और सेक्शन के लेफ्ट साइड अपवर्ड लग रहा है तो पॉजिटिव, और सेक्शन के राइट साइड अपवर्ड और सेक्शन के लेफ्ट साइड डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, करेक्ट। और या फिर हमने आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखा, तो जो p बाई टू फोर्स है, इट विल ट्राइंग टू प्रोड्यूस अ कपल अबाउट द क्रॉस सेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। और यहाँ पे जो p फोर्स है, इट विल ट्राइंग टू प्रोड्यूस अ कपल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट दिस क्रॉस सेक्शन y, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, यस और नो। तो आई थिंक दोस्तों इस तरीके, दोनों ही तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर कोई क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस करने की कोशिश करे तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस करने की कोशिश करे तो उस पर्टिकुलर फोर्स को हम नेगेटिव कहेंगे, करेक्ट। अब ये हो गया राइट टू लेफ्ट। अब अगर आपको फोर्स दोस्तों इस डायरेक्शन से मेजर करना हो और अगर रिमेन इस एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन मेजर करना है, तो देखो क्या आएगा, हियर फोर्स एट एक्स एक्स एंड फोर्स इज मेजर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यस आर नो, राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे देखो जो आर वी ए है, इट विल ट्राइंग टू प्रोड्यूस अ कपल अबाउट द क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट विल कंसीडर एज पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव पी बाई टू लिख सकता हूँ। या वन मोर थिंग, इस क्रॉस सेक्शन के, इस एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड अगर कोई फोर्स डाउनवर्ड लगेगा तो उसे पॉजिटिव कहूंगा, तो ऑब्वियसली आर बी ए पॉजिटिव होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट आता है इस पी को, तो ये पी देखो, ये जो पी फोर्स है एक्स एक्स क्रॉस के अबाउट, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कपल प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा अबाउट दिस क्रॉस सेक्शन, यस आर नो। एंटी क्लॉकवाइज कपल जो प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है उसे हम नेगेटिव कहते हैं, माइनस पी लिख सकता हूँ, यस आर नो। और सिंपली यू कैन से कि अगर क्रॉस सेक्शन एक्स क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड अगर कोई डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है तो वो नेगेटिव होगा, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यस आर नो। तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव लिख सकते हैं, यस आर नो। तो नेट वैल्यू क्या है, माइनस पी बाई टू। तो आपने देखा दोस्तों, अगर आप लेफ्ट टू राइट चलो या राइट टू लेफ्ट चलो, अगर आप सेम क्रॉस सेक्शन में देख रहे हो फोर्स, तो आपको सेम फोर्स मिलेगा विद सेम डायरेक्शन, यस आर नो, करेक्ट है। एंड सिमिलरली अगर मैं यही लेफ्ट से राइट की तरफ वाई बाई क्रॉस सेक्शन में लिखूं तो क्या आएगा, शियर फोर्स एट वाई बाई, तो ऑब्वियसली देखो आरवीए जो है, ये लग रहा है सेक्शन के लेफ्ट साइड अपवर्ड, और सेक्शन के लेफ्ट साइड अपवर्ड है तो उसे हम पॉजिटिव ही कहेंगे, ये आर नो। मैं सिंपली लिख सकता हूँ बाई टू। तो देखो दोनों ही इक्वेशन से, यहाँ पे मैंने एक्स एक्स लिखा, एक्चुअली दिस इज वाई बाई नॉट एक्स एक्स, करेक्ट। तो दोस्तों कहीं भी सेक्शन में अगर आप लेफ्ट से फोर्स मेजर करो, राइट से मेजर करो, आपको सेम मैग्नीट्यूड फोर्स मिलेगा विद सेम साइन इन सेम डायरेक्शन, यस आर नो। आई थिंक दोस्तों अब आपको साइन कन्वेंशन आ गया होगा स्फीयर फोर्स का, करेक्ट है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, बेंडिंग मोमेंट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि algebraic sum of all the moments either right side of the portion or left side of the portion is called as bending moment। और मोमेंट बेंडिंग कब कहलाता है, जब वो ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट लगे, यस आर नो। लेट अस कंसीडर हियर अ बीम like this, correct, and again here we have two supports like this, yes or no, and it is subjected to a load P। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी लोड एक्ट हो रहे हैं वो वाई एक्सिस के ऊपर लग रहे हैं, और अगर हमारा रेफरेंस एक्सिस तरीके से है तो किसी भी फोर्स का मूवमेंट आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वो सारे मूवमेंट एक्स एक्सिस के अबाउट ही लगते हुए मिलेंगे, करेक्ट है। और एक्स एक्सिस के लिए ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, कोई भी कोई भी मूवमेंट अगर ट्रांसवर्स एक्सिस, कोई भी कपल अगर ट्रांसवर्स एक्सिस के ऊपर प्रोड्यूस हो तो उसे हम बेंडिंग कपल कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो बेंडिंग मोमेंट इज नथिंग बट, सपोज हियर आई एम गोइंग टू कट अ सेक्शन लाइक दिस, एंड वन मोर थिंग, सपोज दिस इज लोड P, यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा एट बोथ एंड्स A एंड B, एंड सपोज दिस इज, यहाँ पे दोस्तों दोनों एंड में रिएक्शन P बाई टू एंड P बाई टू मिलेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक लोडिंग है एट ए डिस्टेंस ऑफ L बाई टू, दोनों साइड हमने L बाई टू डिस्टेंस पे ही लोड अप्लाई किया, करेक्ट है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो,
suppose if I cut a section, if I cut a section portion, यहाँ पे अगर मैं सपोज एक सेक्शन कट कर दूं लाइक दिस, करेक्ट है दोस्तों? तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में चाहे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ, करेक्ट, या राइट से लेफ्ट की तरफ जाओ, कहीं से भी जाओ, आपको जो नेट फोर्स की वैल्यू मिलने वाली है वो रिमेन सेम मिलने वाली है, yes or no? करेक्ट है। और जो एल्जेब्रिक सम कहलाएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबाउट द क्रॉस सेक्शन कॉल्ड एज बेंडिंग मोमेंट। इज इट क्लियर? ये बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन हो गई कि algebraic sum of all the moments is the right side of the section or left side of the section is called as bending moment. And now if we talk about its sign convention, then here we have very simple sign convention, that is, you can see here, if beam can bend like this, ऐसा बेंड हो कुछ इस तरीके से कि जो अपर फाइबर ऑफ द बीम will be compressed and bottom portion of the bottom fiber of the beam will be expanded. is it clear? इस तरीके के बीम को डिफ्लेक्शन को हम कहते थे, इस तरीके की बीम के बेंडिंग को दोस्तों कहते हैं सैगिंग। करेक्ट है? कोई भी मूवमेंट अगर सैगिंग टाइप का बेंडिंग प्रोड्यूस करे उसे दोस्तों हम कहेंगे पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट। करेक्ट? एंड सिमिलरली इफ योर बीम कैन बेंड लाइक दिस, its upper fiber gets expanded and bottom fiber gets contracted. करेक्ट? श्रिंक हो रहा है, कंप्रेस्ड हो रहा है, कंप्रेस ही लिख देता हूं चलो। करेक्ट? तो दोस्तों इस तरीके की कंडीशन को कहते हैं हम हॉगिंग। और हॉगिंग कंडीशन में जो बेंडिंग मोमेंट एक्ट होता है उसे कहते हैं हम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। करेक्ट है दोस्तों? और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यही रटते रहते हैं कि हम स्वैगिंग कहेंगे, हम हॉगिंग कहेंगे। तो मैं आपको फिर से एक थंब रूल्स बता रहा हूँ, एक जुगाड़ बता रहा हूँ। करेक्ट है? जुगाड़। और ये जुगाड़ दोस्तों ये ऐसा है कि when any force, when any thing which is acting upward direction, कोई भी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्ट हो रहा हो लाइक दिस, इससे जो बेंडिंग मोमेंट एक्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइड ऑफ द सेक्शन। जो भी आपने सेक्शन कंसीडर किया है, लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर फोर्स अपवर्ड है तो वो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। वहीं पे अगर कोई भी फोर्स नेगेटिव एक्ट सॉरी डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है देन इट विल ऑलवेज प्रोड्यूसेस नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद है कि ऑल अपवर्ड फोर्स प्रोड्यूसेस all upward force produces positive bending moment and all downward force produces नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। ये सानो जितने भी अपवर्ड फोर्स है वो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट करेंगे, जितने भी डाउनवर्ड फोर्स है वो सारे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे। करेक्ट है? तो ये जुगाड़ है और ये एक्चुअल है। अब इन दोनों को हम कैसे क्लब करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ इस पर्टिकुलर स्लाइड में, यू कैन सी। करेक्ट है? फिर से मैं यहाँ पे दोस्तों एक बीम ड्रॉ करने जा रहा हूँ लाइक दिस। ए यहाँ पे रिएक्शन आएगा दोस्तों p/2 एंड हियर। ओके, लेट अस कंसीडर अ क्रॉस सेक्शन एट दिस। करेक्ट है दोस्तों? और ये डिस्टेंस कितनी थी? l/2 l/2 एट बोथ साइड। और हमने क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम बी एंड। यस और नो? बी एंड से हमने दोस्तों यहाँ पे क्या कंसीडर किया? एक क्रॉस सेक्शन। करेक्ट? एंड दिस लेंथ इज l/2 एंड दिस डिस्टेंस x फ्रॉम बी एंड। करेक्ट? नाउ अब अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन को यहाँ पे देखूं दोस्तों और लेफ्ट साइड वाले सॉरी राइट पोर्शन को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं लाइक दिस, और यहाँ पे देखो जो आपको फोर्स एक्ट हो रहा है ये p/2। ये p/2 दोस्तों कैसे कर रहा है? दिस p/2 इज ट्राई टू बेंड दिस बीम इन दिस मैनर, यस और नो? लाइक दिस। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे आपने देखा था दिस इज हॉगिंग
एंड दिस इज सैगिंग, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, सैगिंग एंड दिस इज हॉगिंग। ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? करेक्ट है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो ये जो कर्वेचर बन रहा है वो इसके इस तरीके के कर्वेचर, इस साइड के कर्वेचर जैसा ही है। हम कह सकते हैं ये जो बेंडिंग है ये हॉगिंग जैसा है, ये सामने। तो जब भी कोई भी फोर्स अगर हॉगिंग टाइप का बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करे तो उसे हम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कहेंगे। तो यहाँ पे देखो बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स एक्स क्या आएगा दोस्तों, p/2 इंटू एक्स पॉजिटिव, ये सार नो, करेक्ट है। इस तरीके का आपको बेंडिंग मोमेंट था और ये पॉजिटिव है, ये सार नो। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपके पास कोई फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा हो वो हमेशा पॉजिटिव ही बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, ये सार नो। अब देखो यहीं पे इसी क्रॉस सेक्शन के अगर मैं लेफ्ट पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, then you can see here we have two, this one is p/2 and another load like this, nothing but this is p, yes or no? तो दोस्तों इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। एक फोर्स यहाँ पे ऐसा डाउनवर्ड लग रहा है, तो जैसे ये बीम तरीके से डिफ्लेक्ट होगी, और दूसरा फोर्स यहाँ पे दोस्तों अपवर्ड लग रहा है, फोर्स की वजह से बीम तरीके से डिफ्लेक्ट होगी। तो जो P फोर्स है दोस्तों, दिस P एंड दिस इज p/2, यहाँ पे जो P फोर्स है इट विल ट्राई टू बेंड दिस बीम हॉगिंग मैनर, यस और नो, लाइक दिस। और यहाँ पे जो p/2 है इट विल ट्राई टू बेंड दिस सैगिंग मेंबर, यस और नो। और क्रॉस सेक्शन रिमेन सेम है दोनों के लिए, यही एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन के अबाउट हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखोगे आप, बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स एक्स, तो p/2 इंटू ये लेंथ क्या होगा दोस्तों, अगर ये x है और टोटल लेंथ l है, मैं इसे लिख सकता हूँ l माइनस एक्स, टोटल लेंथ कितनी है l, l में x को माइनस कर दे तो क्या आ गया l माइनस एक्स, करेक्ट। और ये पॉजिटिव आएगा। अब अगर इस p का मोमेंट देखूं तो ये क्या आएगा, नेगेटिव, -p/2 क्या आएगा दोस्तों, l, सॉरी ये डिस्टेंस क्या है l/2 माइनस एक्स, l/2 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं क्या, करेक्ट। और ये नेगेटिव आएगा। और ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि अगर फोर्स आपका अपवर्ड लग रहा है ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, और डाउनवर्ड लग रहा है तो ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट ही प्रोड्यूस करेगा। इज इट क्लियर? ये इक्वेशन भी मिल गया। अब अगर इसको सॉल्व करोगे देखो क्या आएगा, l/2 माइनस x/2 माइनस l/2 प्लस x, ये सार नो, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। और इसको अगर मैं सम करूं यहाँ पे मुझे नेट रिजल्ट मिलेगा x/2। और यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है। आपने देखा कि सेक्शन में मैं चाहे लेफ्ट से राइट की तरफ बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखूं या लेफ्ट से राइट की तरफ बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखूं, मुझे सेम वैल्यू मिलने वाली है, यस और नो, वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। इज इट क्लियर? एंड सिमिलरली आप कहोगे कि सर अगर हम पोर्शन ही चेंज कर दे तो चलिए यहाँ पे अगर मैं सेक्शन कट करूँ तो देखो क्या होगा, एक्स एक्स, करेक्ट है। और सपोज चलो मैं इसको वाई वाई कह देता हूँ, वाई वाई क्रॉस सेक्शन। So let's see here. If I cut a section XX like this, Y and Y. यहाँ पे बीम कैसी कुछ तरीके से, लोड कैसा एक्ट हो रहा है दोस्तों, p/2, पहले जो लोड एक्ट हो रहा है उनको आप एज इट इज अप्लाई कर दो, और यहाँ पे P है। अब देखो इसी बीम को मैं यहाँ पे दो टुकड़ों में ब्रेक कर सकता हूँ, ये सार नो, लाइक दिस। एक होगा जिसमें डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है और एक है जिसमें हम अपवर्ड फोर्स एक्ट अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज p/2, ये सार नो, करेक्ट। अब इन दोनों बीम को अगर मैं मर्ज कर दूं तो मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा। इस पी लोड की वजह से ये जो बीम है इट विल रोटेट लाइक दिस, और इस p/2 लोड की वजह से बीम इट विल में रोटेट लाइक दिस, यस और नो। तो वंस अगेन आप देख सकते हो जो अपर पोर्शन है, अपर पी लोड की वजह से जो बेंडिंग हो रही है वो हॉगिंग टाइप की है, और जो p/2 की वजह से बीम बेंड हो रहा है वो सैगिंग टाइप का है। तो अगर मैं यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन वाई वाई लिखूं तो क्या आएगा, can see here, और स्पेशली कहाँ से, when we calculate this value from right to left, b एड से स्टार्ट करो तो क्या आएगा, तो यहाँ पे दोस्तों आएगा प्लस p/2 इंटू l/2, और सपोज x डिस्टेंस में यहाँ से मेजर करूँ, करेक्ट है, तो क्या आएगा p/2 l p/2 इंटू l/2 प्लस
एक्स ऐसे लिख सकता हूँ, यस आर नो? करेक्ट। एंड माइनस पी टू एक्स, यस आर नो? हमारे पास ये वैल्यू आएगा और इसकी नेट वैल्यू क्या आएगी देखो, एल बाई फोर प्लस एक्स बाई टू माइनस पी एक्स। सॉल्व करने पे इक्वेशन मिला पी एल बाई फोर माइनस पी एक्स बाई टू। ये आपका बेंडिंग मोमेंट अबाउट वाई वाई, करेक्ट। और वहीं पे देखो, अगर मैं यहीं पे इक्वेशन बेंडिंग मोमेंट अबाउट सेम वाई वाई बट इट इज मेजर्ड फ्रॉम दिस ए एंड, क्या आएगा दोस्तों अबाउट दिस क्रॉस सेक्शन, इज सिंपली रिटन एज पी इंटू सॉरी पी बाई टू इंटू, यहाँ से देखो ये टोटल लेंथ कितनी है, दिस वन इज एल बाई टू, एल बाई टू में एक्स माइनस कर दो तो क्या आएगा, एल बाई टू माइनस एक्स, नेट वैल्यू मिलेगी। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो पी एल बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। अब देखो, जो हमने अपर अपर इक्वेशन लिखा था, कहाँ से, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यहाँ पे क्या है, बी टू क्रॉस सेक्शन, और यहाँ पे जो इक्वेशन है कहाँ से है, फ्रॉम ए टू क्रॉस सेक्शन वाई वाई, करेक्ट। तो कहीं से भी लिखो आप दोस्तों, एल्जेब्रिक सम लिखो, आपको सेम वैल्यू मिलने वाली है, बट बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि साइन प्रॉपरली आप एज्यूम करो। तो आई थिंक दोस्तों यहाँ से आपको पता चल गया कि हाउ टू यूज साइन कन्वेंशन ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट बोथ, यस आर नो? करेक्ट है दोस्तों। तो आज के लेक्चर के लिए इतना इनफ है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हाउ टू ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन, यस आर नो? एंड सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस भी है, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए दोस्तों, यहीं पे सेशन को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।